and I found good opportunity there, and he will be speaking in memory. We have Shri Bhajan Sopori, who is obviously brother. We have Kailash Mehra, she does need an introduction. Mrs. Aarti Kaur from Boston. We have Neerja from Bombay joining us, and we have Ashna Janani, who is present here at the camp, who will be, speaking a few words. Today, posthumously, and unfortunately, we have to present this. We hope that we had given the award to him in person. We were hoping to get him on a Zoom call, but unfortunately, that could not happen. And of course, joining us also is Abhay and Bhajan Sopori. Aparnaji and Abhayji, I don't know how to say how sorry and how, really saddened we are with Bhajanji's passing. As you know, that Bhajanji last year was so gracious that he presented to us in our program. And we cannot, I think that's one of the best gifts that he gave to us. So thank you so much, Aparnaji, for joining us. Thank you, Abhay, for joining me. I know that this is a painful time for you, and I hope that we'll all remember Bhajanji through the music, the magical music that he created, and you will take comfort in that the world, especially the community, is with you in that loss. We have also lost a renowned member of our family. So, again, with a heavy heart, we stand here in the memory of the legend and musical of our community. Maestro PADMASHRI Pandit Sopori. KOA was honored to host Bhajanji last year, so in our virtual camp, and he gave us this gift that we will be putting on Facebook in a few days, so that everyone can share that wonderful, I think almost like celestial music that he played for us. As we know, Bhajanji was more than an important individual. He was a performer, composer, par excellence, teacher, writer, poet, and extraordinary. He was a complete institution in himself. He was regarded as the saint of Santoor and the king of strings. Bhajanji elevated Santoor into a prominent instrument of Hindustani classical music. His compositions are a manifestation of his musical brilliance. And we saw some of the brilliance went along with our playing for us last year. Thank you, Abhay, for doing that for us. Some of you may know that he may not know, but he was right here in Stanford, Connecticut, 15 years back when he graced the KOA annual camp here for the first time on behalf of the entire organization. It is my absolute honor, lifetime Circle of Excellence Award to Bhajanji. So give me a moment and I am going to show it to our audience here and also to This is the Circle of Excellence Award. These awards to Bhajan Sopori, unfortunately, posthumously, but this award obviously hope that on his behalf. Abhay or Aparnaji, you want to speak a few words? Thank you. Thank you so much. Thank you, Abhay, and thank you. We now call upon Pandit Vijayshanker Mishra to say a few words. Thank you, Mishra. मिश्रा जी आप सुनाई दे रहे हैं आपको? मुझे कह रही हैं क्या? हाँ जी आपसे कह रहे हैं प्लीज। अच्छा वो आपकी आवाज क्लियर नहीं आई थी यहाँ तक। आवाज नहीं आ रही है ना? हाँ इंदु जी आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है। जी हाँ। हाँ कट रही है, आवाज काफी कट रही है। मिश्रा जी आपकी आवाज ठीक ठाक आ रही है। कटी भी और धीमी भी है, इतनी धीमी की लिप मूवमेंट दिखती है। जी तो मैं अपनी बात आमिर खुसरो साहब की 2 लाइनों से शुरू करना चाहूंगा। खुसरो दरिया प्रेम का याकी उल्टी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। और मुझे लगता है कि भजन जी भी नाद सागर में डूबकर
भवसागर को पार कर गए। जैसा कि हम सब जानते हैं, मैं उनके संतूर के विषय में ही ज्यादा बात करूंगा। और आज हिंदुस्तान में उत्तर भारतीय संगीत की मैं अगर बात करूं तो जो संतूर बज रहा है वो पंडित भजन सोपोरी जी की देन है। एक सूफियाना परंपरा में जन्मे कलाकार, उन्होंने जब हिंदुस्तानी संगीत की अवतारणा के विषय में सोचा, उसके विषय में, तो उन्होंने पूरे संतूर को बदल दिया। सिर्फ उसके 100 तारों को रखा ताकि शततंत्री वीणा उसका नाम रहे, नहीं तो मध्य सप्तक में बोलने वाला संतूर मंद्र सप्तक में बोलने लगा और वीणा की आवाज को टक्कर देने लगा। 25 ब्रिज वाला संतूर में उन्होंने 45 ब्रिज लगवाए। उसकी बनावट, कलम की बनावट और वादन शैली सबको उन्होंने बहुत ही विस्तारित किया। चिकारी, तरब का तार और तुम्बा, इसके विषय में सबसे पहले भजन जी ने सोचा। और यही कारण है कि हिंदुस्तानी संगीत के कई ऐसे राग जिनको सितार और सरोद वाले भी बजाने से बचते हैं, दरबारी कांगड़ा, नट भैरव, मल्हार अंग के कई राग, इनको भजन जी ने बहुत सफलतापूर्वक अपने संतूर पर बजाया। ध्रुपद अंग से बजाते थे, ख्याल अंग की बंदी से बजाते थे, टप्पा उन्होंने बहुत बढ़िया बजाया, लेकिन ज्यादातर अपने कार्यक्रमों का समापन वो किसी कश्मीरी रचना से करते थे। इसका मतलब यह है कि चाहे वो हिंदुस्तान के जिस कोने में भी गए, कश्मीर को वो कभी नहीं भूले। उनके तानों का एक पैटर्न, हमारा हिंदुस्तानी म्यूजिक मेलोडी प्रधान है, लेकिन उन्होंने इसमें हारमोनी को भी इजाद किया। उनके तानों का एक पैटर्न ऐसे था कि अगर दाहिने हाथ से वो मध्य सप्तक का सा बजा रहे हैं तो बाएं हाथ से तार सप्तक का सा बजा रहे हैं, फिर दाहिने हाथ से रे पर आए तो बाएं हाथ से नी पर गए, दाहिने हाथ से ग पर गए तो बाएं हाथ से ध पर गए, और इस तरह उन्होंने एक हार्मोनी क्रिएट की। दूसरा था कि साही बजा रहे हैं दोनों हाथ से, लेकिन एक में मंद्र सप्तक है तो एक में तार सप्तक है, या एक में मध्य सप्तक है तो एक में तार सप्तक है। इससे पता लगता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की और कितना सोचा अपने संतूर के विषय में। और इसीलिए जब उन्होंने संतूर में इतना सारा परिवर्तन किया तो उन्होंने उसको सोपोरी बाज का भी नाम दिया। कश्मीर से बाहर आने के बाद वसूल के आधार पर उन्होंने न केवल पखावज की संगति को लिया अपने साथ, मृदंगम, घटम, कंजीरा वगैरह की संगति को भी अपने साथ लेकर उन्होंने संतूर को, मैं कहूं कि एक नई भाषा दी। उन्होंने देश भर की भाषाओं में, लगभग 25-30 भाषाओं में उन्होंने 8000 से अधिक संगीत संरचनाएं तैयार की। उनमें भोजपुरी भी है, कन्नड़ भी है, तमिल भी है, तेलुगु भी है, गुरुमुखी भी है। सोचा जा सकता है कि कश्मीर से निकला हुआ एक आदमी कितने बड़े लेवल पर काम कर रहा है। और हिंदुस्तान का कौन सा बड़ा कलाकार है, मैं पंडित राजन साजन मिश्र का नाम लूं, बेगम परवीन सुल्ताना जी का नाम लूं, सुबह मुदगल जी का नाम लूं, साहिद परवेज जी का नाम लूं, अनूप जलोटा का नाम लूं, वाड़ी जयराम, शंकर महादेवन, अभिजीत, कितने कलाकार उनकी कंपोजिशन को गा गा कर अपने आप को धन्य समझते रहे। एक इतना बड़ा कलाकार, और उसने संगीत के लिए इस लेवल पर सोचा कि उन्होंने सामापा जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई दिल्ली में, और जिसकी ख्याति पूरे विश्व में है। कितने जगहों से उनके पास फोन आते थे, और उसका संदेश उन्होंने रखा, जन जन तक संगीत। कोरोना की बीमारी या जब कश्मीर में बाढ़ आई थी, उसके लिए उन्होंने फंड रेजिंग के लिए उन्होंने काम किया। और इस तरह से मुझे लगता है कि भजन जी ने जितने आयामों को लेकर काम किया वो सचमुच एक आदमी के लिए कठिन था, मुश्किल था। इसलिए मैं उनको कहूंगा कि वो अपने आप में एक पूरी संस्था थे। बस। धन्यवाद विजय शंकर जी। मैं अब बुलाना चाहूंगी डॉक्टर अग्निशेखर को। तो अग्निशेखर जी, आप प्लीज कुछ शब्द कहिए भजन जी के बारे में, पर अगर हम थोड़ा शॉर्ट रखें क्योंकि
सबको बोलना है थोड़ा थोड़ा। भजन जी की कला और उनके संगीत की बारीकियों को जिस तरह से विजय जी ने बयां किया, यहाँ रखा, और उसमें तो कुछ बचता नहीं है। उन्होंने इतना उनके डायमेंशन को खोला। मैं उनको एक व्यक्ति के नाते, एक संगीतकार के नाते, एक कवि के नाते और उनके एक अनुयायी या प्रशंसक के नाते जैसे मैंने देखा है, जितना मैंने उनका सुना है, जितना उनको जाना है, वो संगीत के पर्याय थे। संतूर के पर्याय तो जैसा विजय जी ने कहा तो वो तो थे ही थे। और कहना चाहिए कि कश्मीर में विशेषकर जब तक वो कश्मीर में थे, वो एक रिनेसां के आइकन थे। उन्होंने एक रिनेसां संभव किया कश्मीर में, और पूरे को कश्मीर का जो संगीत और उसका जो स्ट्रक्चर था, उसको समझ के उसको सारे स्ट्रक्चर को बदलने वाले कलाकार, संगीतकार और संरचनाकार भजन जी ने, जैसे कि विजय जी ने कहा, 7-8 हजार कंपोजिशंस तैयार करना, फिर उनको गवाना और फिर एक नई पीढ़ी तैयार करना। जैसे हमारे सामने मेरी छोटी बहन नीरजा हैं, कैलाश जी हैं, एक पूरी पीढ़ी को सामने किया। और इतना ही नहीं कि एक पीढ़ी तैयार हुई, जो उनसे बुजुर्ग थे या उनके समकालीन, उनके कॉन्टेम्पररी थे, उनसे भी उन्हें भी नई स्ट्रक्चर में फिट करके एक संगीत, कश्मीर संगीत के संगीत को, जिसमें अध्यात्म था, जिसमें शैव डिस्कोर्स था, विमर्श था, जिसमें सोफियाना जो उनकी ट्रेडिशनल घर की 200-300 साल की ट्रेडिशन थी, उसका ब्लेंड उनके पास था। उसको ऐसी ऊंचाई दी कि आज जिसे कश्मीरी संगीत कहें हम, उसके निर्माता, उसके रिनेसां मैन जो थे, वो भजन सोपोरी जी थे। और तीसरे डायमेंशन को वो खोलने वाले थे, जिसे हम कश्मीरी शैव में लोकोत्तर कहते हैं, यानी ट्रांसेंडेंटल स्टेज जो एक होती है। कवि लिखता है शब्द और संगीतकार उसे संरचित करके, कंपोज करके जब वाणी मिलती है उसको कलाकार की, और जब वो शब्द नाद से स्पंदित होता है और आप एक ट्रांसेंडेंटल स्टेज में जाते हैं, तो वही एक आनंद की अनुभूति कराने वाले, एक हमको आनंद की तरफ ले जाते थे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन्हें इन्हीं शब्दों में श्रद्धांजलि देते हुए ये कहना चाहूंगा कि कश्मीर का संगीत और पूरे भारतीय कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, भजन जी एक संगीत के भैरव थे। बहुत सही कहा आपने। वो एक बड़ी ऊंची पद के म्यूजिशियन थे। तो इसके बाद मैं भूषण जी को बुलाना चाहूंगी। भूषण जी भजन जी के छोटे भाई हैं और यूएस में सेटल हैं। भूषण जी। Okay, thank you. I'm going to read a very short write-up. If I get emotional, please pardon me for that. I would like to thank KOA. Can you hear me okay? Yes. I would like to thank KOA for arranging this event to give tribute to Bhajan ji. I'm particularly grateful to Indu ji for organizing this. It's a very special occasion. Well, we all miss Bhajan. World misses him as a great artist, a superb performer, an innovator who created many improvements for santoor that include a new posture or a batak for santoor that not only facilitates playing but enhances the sound quality. Mean using pressure to enhance the gaiki style, extending the range of santoor to accommodate broader scale, and many, many more things. We also know he was a great teacher, someone readily willing to share knowledge and have patience to teach. A part of his legacy is a large number of young santoor players. But
I miss him as my little brother, my Guru Bhai, and the person I shared my childhood with. I have many memories of our childhood. Today, I would like to share one occasion with you. Even in the childhood, I knew Bhajanji was very special, and I'm telling you why now. We grew up in a music family filled with many instruments, harmonium, sitar, tabla, santoor. While tabla was my favorite instrument, I also liked to play santoor, but I had very hard time tuning santoor. To me, it was a scary thing to tune 100 strings, and having to tune 3 or 4 strings to one note, they would not resonate. Well, however, Bhajanji did not seem to have problem tuning this. So finally, I remembered one day I asked him, I will say it in Kashmiri first. I said, so chuna ye santuras mushkil vasan tune karo? He said, no. So in English, I asked him, isn't it difficult to tune santoor? He said, no. I thought about it. In a while, then I said, maybe I should not play santoor. Maybe you should just continue your santoor and let me play something else. And indeed, I then played rabab, I then played violin. So for a long time, I kind of gave up on santoor. Well, there were other circumstances. I was in different places. So later on in my life, I picked up santoor again after I came to United States. Now this shows that Bhajanji was something very special from childhood. I believe he was destined to be a very unique musician. But above all, I think Bhajanji was very simple, an unassuming person with a beautiful smile. Absolutely. Thank you, Only, Bhajanji. not only will all music-loving world miss him, we as a family and all his disciples will miss him a lot. Thank you. Thank you, Bhushanji. He was one of the most humble people that I have ever spoken to. I will move on to Kailash ji now with a very humble request that please let's keep the time in consideration, like, short our tributes. So Kailash ji, please. मैं क्या कहूँ कि मुझे कबीर का एक दोहा याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी करी चलो हम हंसे जग रोए। और भजन भैया ने वही सब कुछ कर दिखाया। और मेरा सौभाग्य था कि संगीत शिक्षा सोपोरी घराने से प्राप्त की, और आज मेरे लिए ये बहुत ही दुखद है उनकी शख्सियत को ट्रिब्यूट देना, जिन्होंने बचपन से ही मेरा मार्गदर्शन किया और कश्मीरी और कई अन्य भाषाओं में अनमोल बेजोड़ बनाई गई गोल्डन कॉम्पोजिशंस गाकर मुझे और मेरे जैसे बहुत से कलाकारों को एक पहचान मिली, जिनमें से अभी मेरे साथ नीरजा पंडित हैं, मेरी छोटी बहन, और आरती टिक्कू जी हैं। मल्टी डायमेंशनल लीजेंड, ग्रेट संतूर माइस्ट्रो पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी, मेरे भैया जी का इतना जल्दी चले जाना हम सब के लिए और नेशन के लिए एक ऐसा इररिपेयरेबल लॉस है जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो पाएगी। मेरे बचपन में मेरा सौभाग्य था कि भैया जी अपनी ही लिखी पोइट्री वो लिखते भी थे और उन्हें कंपोज करके एक्सपेरिमेंटल तौर पर वो मुझसे गवाते और एक टेप रिकॉर्डर था उस पर वो रिकॉर्ड किया करते थे।
और हम सब जानते हैं कि कश्मीर में 70s और 80s का एरा जो था वो म्यूजिकल एंगल से गोल्डन पीरियड था, क्योंकि उन्हीं की बनाई गई कंपोजिशंस जो थी वो रेडियो पर और हर तरफ तहलका मचा रही थी। एक नया दौर शुरू हुआ, एक नया आयाम मिला संगीत के फील्ड को। बड़े सोपोरी साहब मास्टर जी स्वर्गीय श्री पंडित शंभुनाथ सोपोरी जी और पंडित भजन सोपोरी जी के अटमोस्ट एफर्ट्स की वजह से लेडीज का म्यूजिक फील्ड में कश्मीर के अंदर आना हुआ, क्योंकि उस जमाने में औरतों का गाना बजाना बहुत ही ठीक गलत समझा जाता था, ठीक नहीं समझते थे। उन्होंने कश्मीरी में ही नहीं, जम्मू कश्मीर की सभी रीजनल भाषाओं में और हिंदुस्तान की अन्य कई भाषाओं में कंपोजिशंस की, और धर्म जाति के नाम पर भी उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, और सब धर्मों से ताल्लुक रखने वाले कलाकारों को उन्होंने हमेशा एनकरेज किया और आगे बढ़ाया और उन्हें बनाया भी। सौम्य, शांत और सरल स्वभाव वाले पंडित भजन सोपोरी जी ने संतूर जैसे जटिल साज में, जैसा कि अभी विजय भाई जी ने कहा, और उसमें कई बदलाव करके एक बड़ा आकार दिया, रेजोनेंस के लिए तूंबा लगाया, मीन की और तरब की, खरज की, अन्य कई तारों को जोड़कर इस पर क्लासिकल गायन शैली को सफलतापूर्वक उतारा उन्होंने, और कई रागों की रचना की, हम सब जानते हैं, और विश्व भर में सफलतापूर्वक उनका प्रस्तुतिकरण करके श्रोताओं को उन्होंने मंत्रमुग्ध किया। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की हिस्ट्री में उनका ये योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उनके डिसाइपल्स की भी एक लंबी फहरिस्त है जो उनकी लेगेसी को आगे ले जाएंगे, जिनमें सबसे आगे अभय सोपोरी हैं। रिश्तों की भी कदर करते थे भजन भैया, और उनकी फिजिकल प्रेजेंस को मैं हमेशा मिस करूंगी। इस बरस रक्षाबंधन के दिन राखी महादेव के चरणों में रख उन तक पहुंचाने की प्रार्थना करूंगी, क्योंकि वो जरूर शिवधाम में उनके पास ही होंगे। ऐसा कहा जाता है कि लीजेंड्स नेवर डाई, लेकिन वो अपने योगदान की वजह से हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों पर राज करते हैं, और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि वे उनके परिजनों और हम सबको उनका इतना जल्दी चले जाने की क्षति को सहने की शक्ति दे, हिम्मत दे, ताकत दे। और मैं यहाँ विराम करती हूँ। ओम शांति। Thank you. Thank you so much. Please. That morning when I got up to listen to this, heard the news finally, that Bhajanji is no more in this world, a whole movie started playing in my head. Starting from the days when I had met him in Presentation Convent School. I was a student, and Aparnadi, you were there as a teacher, and he had just joined teaching us guitar. He had just come, and I remember we all fell in love with Bhajanji's physical presence in the school, his music, his devotion, his genius. So I saw it from that point onwards, how dedicated he was towards his music. But then a more closer association started when I recorded my first song in Radio Kashmir, which he composed, which was after I was auditioned, and this was a first song. Still remember that he was standing there and he just picked up the harmonium, brought me into the room and said, let's go. And he just composed that song within 15 to 20 minutes, and we recorded that song. That was my first song. Uske baad, it's all history. We all recorded beautiful music with his
spearheading the Radio Kashmir में ऐसा era था कि जैसे कैलाश बोल रही थी, best से best गाने record हुए, compositions, and we were lucky, we were fortunate to be there. I was lucky, and like I said, even though he was not, I was not learning under him as a student, but he never discriminated. In fact, his personal touch was that he would drop me sometimes back to home because recordings mein itna time lag jata tha. He would just drop me on his scooter back to home. Bhajan ji has passed on, but since then, since he has passed away, every morning when I start my work, I play his santoor on my side. That's how I work every day. तो मुझे लगता है वो गए नहीं, उनका म्यूजिक यहाँ साइड में है, अभी लगता है कहीं से निकल के आएंगे, तो मैं उस थॉट को लेकर चलती हूँ कि वो कभी जाएंगे नहीं, सचमुच फिजिकली नहीं है, but he's right there. Thank you, Abhay ji. Thank you so much. Neerja ji, please, आप कुछ बोलना चाहेंगे please? नमस्कार अर्चना जी, मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरी उतनी हैसियत भी नहीं है और मैं बहुत छोटा अपने आप को समझती हूँ कुछ उनके बारे में कहूँ, बट इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि मेरा अगर थोड़ा बहुत अभी मैं म्यूजिक में कुछ कर पाई हूँ, ये सब मेरे गुरुदेव, मेरे गुरु भाई पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी जी को श्रेय जाता है, जिन्होंने मुझे आगे आगे चलाया, रेडियो में आगे करके गाने गवाए, एनकरेज किया। वो मैं बहुत तहे दिल से उनका आभार प्रकट करूंगी। जब तक मैं हूँ तब तक मैं इस चीज को हमेशा अपने साथ, अपनी मेमोरीज मेरे साथ है, उनकी ब्यूटीफुल मेमोरीज। कुछ साल पहले उन्होंने मुझे एक गाना दिया, बॉम्बे आए थे तो कहने लगे बिटिया ये याद करो ये गाना, तो मुझे एक मुखड़ा, एक अंतरा सुनाया उन्होंने, इसको रेडी करो फिर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद वो मौका ही नहीं मिला हमको मिलने का, फिर कोविड आया, ये सब बीच में आया, तो मैं उस गाने को थोड़ा सा गुनगुनाऊंगी, उनको उनके चरणों में समर्पित करना चाहूंगी वो 2 लाइनें। अश्क छोड़ो रश्क करथस देवानतई असी छुक्स लागा बेगानतई शम्मत पोको द्रावलगीत यारानतई शम्मत पोको द्रावलगीत यारानतई दशवई गज़ित पे अधा सपद्यो यकसानतई दशवई गज़ित पे अधा सपद्यो यकसानतई इश्क चूरो रश्क करथस देवानतई। Thank you, Neerja ji. ये इसके साथ मैं उनके चरण कमलों में उनकी डिवाइन सोल को शत शत नमन कर रही हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। नमस्कार। Thank you, Neerja ji.
हमारे बीच अर्चना जलाली जी हैं, मैं ये कैंप में आई हूँ, तो इनके दो शब्द। The passing away of Shri Bhajan Sopori, the legendary maestro, came as a great shock to the people of the valley as well as people of the whole country. Bhajanji was not only an ace performer in our music instruments, but also a very great composer. Although I did not get enough chance to work with him as in the decade of 90s when genocide happened, we had left Kashmir and Bhajanji was settled at that time. So we could not get enough time to work together, but I have always loved the singer's compositions. And he has been, a great contributor to the music of Kashmir. I, with the entire music fraternity, want to pay my homage to this son of the soil. Namaskar. Thank you. आप सबको जो इस प्रोग्राम में आ सके, अगर हमारे पास टाइम हम इस प्रोग्राम के लिए बहुत ही ज्यादा लोगों को कर सकते थे और उनके ट्रिब्यूट में बहुत ही ज्यादा लोग बोलना भी जाएंगे, तो शायद आगे चल के हम वो करें कि वो प्रोग्राम करें ऑर्गेनाइज। और इस बार क्योंकि टाइम की थोड़ी पॉसिटी है, तो हमें ये प्रोग्राम अभी एंड करना पड़ेगा। तो इस साथ मैं अभय जी, अपर्णा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और I wish that we had done this program when Bhajan ji was with us, but I'm sure he's listening and he's blessing all of us. So with those words, Abhay ji, I wish you the best of luck. I'm sure that you'll carry his legacy forward, and you have been given the divine gift, and as well as the blessings of your father. So thank you very much, and we will have to conclude this. Thank you so much for everyone joining. Thanks a lot. Thank you.